So we'll start. Yes. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna, Dandavat Pranam to you all, those who are present here and those who are yet to join us. Rasanath Prabhu, can you share the screen? I want to share the screen. Can you make the co-host? If you can make me the co-host, I can show you something. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So 1.18.19 कुत पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः। कुतः पुनर्गणितो नाम तस्य महत्तमैकान्तं परायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनान्तमाहु। कुतः पुनर्गणितो नाम तस्य महत्तमैकान्तं परायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहु। व्हाट मीनिंग? कुतः क्या कहें, पुनः फिर, गृणतः कीर्तन करने वाला, नाम पवित्र नाम, तस्य उनका, महत्तम महान भक्त, एकांत एकमात्र, परायणस्य जिसका आश्रय लिया जाए, यह जो अनंत अनंत है, शक्ति ही शक्ति, भगवान अनंत असंख्य, महत महान, गुणत्वाद ऐसे गुणों के कारण, यम जिनको अनंतम अनंत रूप में आहुहु पुकारा जाता है। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति के असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य सरबंदे पड़ेगी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Yeah. Less intelligent, uncultured men born of higher class forward many arguments No problem. कोई बात नहीं against the lower caste men. कंटिन्यू Becoming करो। brahmanas in this life, they argue
that birth in a family of Shudras, less than a Shudra, is made possible by one's previous sinful acts, and that one therefore has to complete the terms of disadvantages due to the lower birth. But to answer this false logician, Srimad Bhagavatam asserts that one who chants the holy name of the Lord under the direction of a pure devotee can at once get free from the disadvantages due to the lower caste birth. The pure devotee of the Lord does not commit any offense while chanting the holy name of the Lord. There are 10 different offenses chanting the holy name of the Lord. Chant the holy name under the direction of a pure devotee is offenseless chanting. Offenseless chanting of the holy name of the Lord is transcendental, and therefore such chanting can at once purify one from the effects of all kinds of previous sins. This offenseless chanting indicates that one has fully understood the transcendental nature of the holy name and has thus surrendered unto the Lord. Transcendentally, the holy name of the Lord and the Lord himself are identical, being absolute. Holy name of the Lord is as powerful as the Lord. Lord is the all-powerful personality of Godhead, and he has innumerable names which are all non-different from him and are equally powerful also. The last word of Bhagavad Gita, Lord asserts that one who surrenders fully unto him is protected from all sins by the grace of the Lord. Since his name and he himself are identical, holy name of the Lord can protect the devotee from all effects of sins. Chanting of the holy name of the Lord can undoubtedly deliver one from the disadvantages of lower caste. The Lord's unlimited power is extended on and on by the unlimited expansions of the devotees and incarnations. And thus, every devotee of the Lord and the incarnation also can be equally surcharged with the potency of the Lord. Since the devotee is surcharged with the potency of the Lord, even fractionally, the disqualification due to lower birth cannot stand in the way. Very nice. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो वैष्णव स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपतन्तिकम्। We cannot listen to you, Prabhu. You Oh. are mute. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो वैष्णव स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपैसा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकन्दन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमेजे पताक सौमनिधि नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाने गौरकथाक दामदाय नगर ग्राम तरुणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महतम् एकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वायमनन्तमाहुः। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। किसके विषय में? जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। यानी हियर इज डिसिप्लिक सक्सेशन। जो गुरु शिष्य पद्धति के अनुसार
जो भगवान के विषय में जानने का प्रयत्न करता है, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, या उनको प्रोपोगेट करता है, किसकी? उस भगवान की जिसकी अनंत शक्ति है, और जो शक्ति में असीम गुणों में दिव्य हैं। एक तो गुण है, उसके ऊपर दिव्य, उसके ऊपर असीम, अनंत, कोटि, निधि, जिनको गिना नहीं जा सकता है, वे अनंत कहलाते हैं। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। अगर किसी का कोई अंत नहीं है, इसके मतलब उसका बिगिनिंग में नहीं है। जिसका ना स्रोत हो, न आगे हो न पीछे हो, जो सब में अकेला हो, उस भगवान के नामों का कहते हैं अगर कोई गुणगान करे भक्तों के निर्देशन में, तब फलीभूत होता है। इवन नानक जी कहते हैं, नानक नाम जहाज। नानक जी कहते हैं कि जहाज जो है समुद्र वैतरणी पार करने के लिए नाम ही जहाज है। जहाज जिसमें आप आराम से समुद्र को तर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नानक नाम जहाज। और 10वें चैप्टर में भगवान ने कहा अर्जुन को, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मैं तुमको और क्या बताऊं? ये जो सृष्टि तुम देख रहे हो, ये मेरे अंश के द्वारा उठाया गया है। यानी संकर्षण के द्वारा अपने हुड जो उनके हैं उसमें है, वो भी एक मस्टर्ड सीड की तरह। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कहते हैं अथवा बहुने तेन, तुमको और क्या बताऊं है, और क्या तुम्हें बताऊं? एक अंश है ना, मेरे एक अंश में ही स्थित है। तब अर्जुन ने समझा, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने परखा कि भगवान के गुण तो अनंत हैं, उनके रूप अलग हैं, कर्म अलग हैं, गुण अलग हैं, व्यवहार अलग है। और जबकि भगवान कहते हैं न मैं द्वेष अस्ति न प्रिय है, न मेरा कोई दो प्रिय है, न मैं किसी द्वेष करता हूं। सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं। अगर सबके लिए बराबर है तो किसी को कष्ट क्यों, किसी को फायदा क्यों? तो इस प्रकार कहा गया है, जैसे कोई जज हो ना, एक जज किसी अपराधी को सजा देता है, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, या उससे ज़्यादा उम्र कैद दे सकता है। और उसी जज के पास अगर कोई दूसरा केस आए, वो कोई महानानी का केस हो और महानानी अप्रूव कर दे, ठीक है इसको जो हम 5 करोड़ रुपए दे दो। अब जज वही है, वही कोर्ट है, वही वकील है, सब कुछ यही वातावरण है। किसी को उम्र कैद की सजा और किसी को माला माल। क्यों? कि जज जो है उसका किसी से कोई हेत प्रेत नहीं है, वो उनकी जो है कर्मों के अनुसार, और दूसरे में कहें कि उनके जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य के अनुसार, उनके जो प्रेजेंटेशन उनके अनुसार किसी को माला माल, किसी को सजा। इसी प्रकार भगवान भी किसी के लिए न तो द्वेष है न किसी के प्रिय है। जो कर्म जिसके होंगे उस कर्मों के अनुसार उनको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान इसमें कोई वो नहीं करते, नहीं ये तो आपको भुगतना है। अब वो जो भुगतने वाली चीज़ है उसका जो क्या प्रेशर पावर जो है 1% लेकर 100% तक हो सकता है, इतना भगवान कर सकते हैं, लेकिन भुगतना ही जरूर पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी सुना कथा सुनी तो कह रहे हैं, देखिए मैं नीच कुल में पैदा होने के बावजूद भी मैं नारायण प्रायण हो गया, मैं भागवत प्रायण हो गया। ये सिर्फ मैंने निर्देशक गुरु से सुना। तो हम महत्व बनती है कि जो भी अगर डिसिप्लिक सक्सेशन जो हमारे हैं, 4 हमारे संप्रदाय हैं, इन चारों संप्रदाय में ये हो सकता है कि भगवत प्रेम मिले, जरूर नहीं है।
ये तो जो प्रैक्टिशनर है उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना उसको अंगीकार कर सकते हैं, कितना उसको उपयोग कर सकते हैं, कितना उसको भोग कर सकते हैं, उनके अनुसार। लेकिन इन चारों संप्रदाय में भगवान कहते हैं इनको चांस है। देखिए क्या चांस है, अगर आपने पासपोर्ट बना दिया ना तो आपका विदेश जाने का चांस है, लेकिन आप पासपोर्ट ना बनाए तो कैसे होगा? तो अगर आप भक्त न बने इन संप्रदाय में तो उत्थान कैसे होगा? हम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग कैसे अपनाएंगे? तब होगा ना जब हम करेंगे। कोशिश हमने करनी। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सपने, शायद मैंने कल परसों बात की थी, हम देखते हैं सपने और सपने देखते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। हमें सपने नहीं देखने हैं, आपने अपना गोल निर्धारित करना है कि जल्दी से जल्दी मैं भगवान के बारे में जान सकूं, इतना जान सकूं कि बार बार मुझे उसी की याद आए, बार बार उसी का चिंतन हो, बार बार उसी का मनन हो, और तब जाके हम भगवत प्रायण बन सकते हैं। वरना इसे सोचना बिस्तर में लेटे हो कि फिर मैं तो यहाँ से स्वर्ग होते हुए स्वर्ग भी देखूंगा, जनलोक भी देखूंगा, महल लोक भी देखूंगा, सत्य लोक भी देखूंगा, फिर मैं ऊपर जा करके जो है मैं महेश धाम भी देखूंगा, महेश धाम के बाद मैं जो हूँ वैकुंठ भी देखूंगा, हजारों लाखों वैकुंठ हैं, और तब जाके मैं जो हूँ गोलोक वृंदावन भगवान के सिवा पहुँचूंगा। ये सपने हैं, उसके करने के लिए साधना, हम जाए न जाए बात दूसरी है, लेकिन साधना तो करनी है। ओलंपिक होने वाले हैं, किसी को गोल्ड मिले ना मिले, लेकिन तैयारी तो पूरी करनी है। हम लोग बिना तैयारी के सपने देखने लगते हैं कि जैसे सबरी के पास राम चले आए तो मेरे पास भी भगवान चले आएंगे, बोले चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें लेके जाता हूं। ऐसा नहीं होगा। हम कर्म प्रधान हैं, हमको कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के हम नहीं जा सकते हैं। तो ये कथन है श्रीमद् भागवतम का। आखिरी में देखें, नाम संकीर्तनम यस्य, लास्ट श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य, जब तक नाम संकीर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो नाम संकीर्तन के द्वारा, और क्या नाम संकीर्तन है? इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, एट होम एंड आउटसाइड द होम। ये जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। और फिर नाम संकीर्तन कैसा? हम अपने को भूल जाएं, बस याद रहे नाम, और तुलसी की सहायता से, तुलसी की बीट की सहायता से हम भगवान को पाने की कोशिश करें। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये पापों का उन्मूलन तभी होगा जब नाम संकीर्तन होगा, है? सो प्रणाशनम प्रणामो दुख नमः। देखो पाप और दुख में भेद है। पाप है पेड़ और दुख है उसमें लगने वाले फल। पाप जो है पेड़ है और उस पेड़ में हजारों फल लगते हैं, और वो फल लगते हैं दुख के। प्रणामो दुख नमः, आज हम प्रणाम करेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, दुख नमः, उन दुखों का भी नाश होगा। अब क्या है, ये पेड़ कट जाएगा, और जब पेड़ कट जाए तो उसमें फल नहीं लगेंगे। तो प्रणामो दुख नमः तम नमामि हरि परम। ये कब होगा? जब हम हरि के परम भक्त बन जाएंगे। सबको भक्त बनना है। क्यों? हम वैसे भी भक्त हैं। जहां हम काम करते हैं उनके भक्त नहीं है क्या? पत्नी पति के या पति पत्नी का भक्त नहीं है क्या? हम अपने बच्चों के भक्त नहीं है क्या? हम अपने माँ बाप के भक्त नहीं है क्या? किसके भक्त नहीं है? हम सबके भक्त हैं। हम भक्त हैं, यानी जिसकी हम सेवा करते हैं। भक्त होते हैं ना, सेवा करना। लेकिन हम भगवान की जिसकी सेवा करनी है, जिसका भक्त बनना है, उसके भक्त बनने में चूक जाते हैं। हाँ? तो सारा सारांश पढ़ने के बाद नाम संकीर्तन में सर्व पाप हरणासनम प्रणामो दुख नमः तम नमामि हरि परम। तो किसी ने कहा ये नाम संकीर्तन कैसे किया जाए, कैसे करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और कहा ऐसे करते हैं नाम संकीर्तन।
जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये तो संकीर्तन है। अब ये संकीर्तन घर में भी हो सकता है, वाइल ड्राइविंग द कार हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, और जंगलों में भी हो सकता है। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो कहीं जंगल घूमने गए, तो हम भटक गए, तो थोड़ी अंधेरा होने लगा। तो हमारे लड़के ने सुझाव दिया कि डैडी जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करो, अगर कोई बाघ वगैरह होगा ना, बेचारा वहां से भाग जाएगा हमारी आवाज़ सुन करके। तो हमने जंगल में खूब जोर जोर से हरिनाम कीर्तन किया, डर के मारे, लेकिन किया। तो आप कहीं भी हो, कोई भी बहाना हो, नाम तो हरि का हो। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान के असीम गुण है। जैसे हम परसों कह रहे थे, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुन ही कहा ही बहुविधि संता। तो अनेक गुण, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। हमने कहा कि शेषनाग अपने हजारों फणों से, हजारों जिव्या से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अनंत है। अब आप जो नॉन डिवोटी उसको बोले अनंत है, तो थोड़ी मानेगा वो थोड़ी मानेगा अनंत है। हम जैसे कहते हैं आसमान अनंत है, अब आसमान की खोज कोई नहीं कर सकता। जो बेचारे चांद तक पहुंचे, उन्होंने आसमान उतनी ही दूर देखा। जो मंगल तक पहुंचे, उनकी फोटो ये बहुत दूर है। क्यों? असीमित है, अनंत है। इसको कहते हैं घटाकाश, इसको कहते हैं घटाकाश, और हम लोग हैं पटाकाश। तो वो ये नहीं, वो पटाकाश है, हम लोग घटाकाश हैं। हम सीमित हैं, वो असीमित है, पटाकाश। तो इस प्रकार भगवान भी अनंत है, और हर व्यक्ति विशेष, चाहे किसी धर्म का हो, भगवान को अनेक तरह से जाने की कोशिश करता है। बहुत सारे कहते हैं भगवान नहीं है, सही कहते हैं भगवान नहीं है, क्योंकि अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को देख ही नहीं सकते। तो जिसको हम देख नहीं सकते, अगर बोल दे कि वो नहीं है, तो बुरा क्या है? लेकिन भगवान तो पूर्ण है। वो पर्सनल फॉर्म भी है, इम्पर्सनल फॉर्म भी है, उनमें गुण भी हैं, उनमें अवगुण भी हैं, लेकिन उनके गुण और अवगुण उनको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन वो गुण जो कारणदायक विषय हमारे पास आए हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमको परेशान करते हैं। अच्छे गुण या बुरे गुण। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छति तामस। तो इस प्रकार भगवान में जो चीज हमारे पास है, भगवान में भी है, लेकिन भगवान उसे आच्छादित नहीं है, भगवान उसे जो है डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जैसे कहा जाता है, अगर हमारे आंसू निकले, कितने भी आंसू निकले, कितने भी आंसू निकले, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि हम अपने आंसुओं में डूब के मर जाएं। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहे आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रोइए, पानी इकट्ठा कीजिए, कभी उसमें मौत नहीं होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटेसिमल है। इसी प्रकार भगवान असीमित है, उनको जानने का अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीके से भगवान को जानते हैं। कोई इस रूप में, कोई इस रूप में। कोई कहते हैं भगवान लाइट है, कोई कहते हैं भगवान हवा है। बात भी सही है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान हवा में भी है, भगवान लाइट में भी है, और भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूँ, मैं दक्षिण प्रति श्वेते सचराचरम, मैं सब में हूँ, नहीं सब मेरे से, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। अब कहते हैं ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं कोई फैक्ट्री के मालिक हो, उसने फैक्ट्री लगाई हो, फैक्ट्री में उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हो, अब वो फैक्ट्री उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में चल रही है, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वहाँ से बहुत दूर है, लेकिन उसका साम्राज्य है, उसका अधिकार है, उसकी इंस्ट्रक्शन है, चलती रहती है। तो वो कह सकता है हाँ मेरी है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन उसी के कहने पर चलती है। ठीक इसी प्रकार भूमिरापनलो वायो खमनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये मेरी अष्टदा प्रकृति है, ये मेरे से है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। लेकिन लोग समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? कि 3 चीजें होती हैं, शब्दार्थ, भावार्थ और शास्त्रार्थ। शब्दार्थ यानी कि आपने किसी शब्द का मीनिंग लिया, उसको समझने की कोशिश की, कोई शब्द का मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश की, उसको तो शब्दार्थ। लेकिन शब्दार्थ में सब चीज़ मिश्रित नहीं है, जब तक भावार्थ न हो। भावार्थ यानी जो पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं,
जब तक उसके बारे में पूरा उसका निचोड़ न निकाले, उसको दें भावार्थ, उसका भाव क्या था। अभी हम क्या, हम लोग सब शब्दों में जुड़े रह गए, अभी तक हम भाव में पहुंचे नहीं है। और भावार्थ उसके बाद शास्त्रार्थ, शास्त्र का जो भाव है, पूरे शास्त्र क्या कहते हैं, कहीं लिखा हुआ है ना कि भगवान जो है निर्गुण है, लेकिन भगवान निर्गुण कैसे हो सकते हैं। भगवान निर्गुण है यानी उन पर जो ये भौतिक के गुण हैं वो उनमें नहीं है, लेकिन गुण उनसे आते हैं। तो अनेक तरह से लोग समझ सकते हैं, लेकिन सूत गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि उनकी असीम कृपा के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। अच्छा, कितना जानना चाहिए? व्हाट इज द अल्टीमेट एनीबडी कैन नो? द ओनली वन थिंग दैट कृष्ण इज टू भगवान स्वयं। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। कि भगवान, तुम स्वयं भगवान हो, और जो भी कारण है या उनके दूसरे कारण है, क्या बोलते हैं उसको, एक्शन और रिएक्शन जो है, भगवान उसी के कारण तुम, उसके स्रोत तुम हो, बस इतना ही जानना है। मैं भगवान का हूं, मैं शरीर हूं या विद्या है? मैं शरीर नहीं बल्कि भगवान का एक मोहरा हूं, यह विद्या है। हम प्रैक्टिकली तो नहीं जान पाए, लेकिन थ्योरेटिकली मालूम है कि सब भगवान है। तो उनकी शक्ति वसीम है। वो कहते हैं, वो तो राई थी प्रवत करे पंडित कशुना है, बहुत श्लोक है। साहब ते सब होत है, बंदे ते कछुनाय, राई को पर्वत करें, पर्वत राही माय। साहब से सब होता है। जो साहब है, जो भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है। कैसे? वो राई को पहाड़ बना सकता है, और जो पहाड़ है उसको राई बना सकता है। आपने मूची की और पंडित की कहानी सुनी होगी नारद मुनि के द्वारा कि भगवान क्या कर रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहूँगा उसको यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है। तो साहब से सब होते हैं, बंदे ते कछुनाए। हमारे पास अहंकार है, और जिस दिन हमने अपना अहंकार छोड़ दिया, हम भक्त जरूर बन जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। हम अहंकार में फंसे पड़े, हम समझ बैठे हम ज्ञानी हैं। बाय द वे, आज हमें पूरे 90 दिन, पूरे 91 दिन हमारा चल रहा है। 91 days योर एसोसिएशन, यू हैव गिवन मी योर एसोसिएशन फॉर 90 days, टुडे द 91st डे। तो ये चलता रहता है। हम, जैसे अभी मैं कह रहा हूं, ये हमारा अहंकार है। समझते कि हमने कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं है। भगवान ने मौका दिया तो बैठे हैं, भगवान ने मौका दिया तो क्या था? कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार प्रकृति के जो दिव्य गुण हैं, हम उनको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्तों की सेवा करने के लिए। और जब हमें मिल जाए तो वाकई जिंदगी मेरे लिए आनंद है, बहुत आनंद है। तो और क्या है, बस काफ़ी है इसके साथ। तो मैंने वाणी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आज के लिए एक और आपके लिए प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का आप लुत्फ उठाइए और देखिए आपको पसंद आता कि नहीं आता। ओके, हरे कृष्णा।